Assalamu alaikum everyone. Welcome you all to the Life Science Academy. So today we are starting our third lecture of genetics for CSIR NET and other national level exams. So in this lecture we will discuss the Mendelian principles, that is Mendelian laws, in which first we will discuss the law of independent assortment, law of dominance, law of independent law of segregation, and then law of independent assortment. And in the main lecture we will take some previous year CSIR numericals from section B and section C, and we will try to solve these questions here as well. So stay with us and be focused for next 20-30 minutes. So Mendelian laws में जो पहला हमें पढ़ना है, that is the law of dominance, although that is not having much significance. Law of dominance we have already discussed in the previous lecture. तो law of dominance का statement यहाँ पे देखते हैं. Law of dominance क्या कहता है? That a character is controlled by a gene having two alternate forms. In hybrid condition, only one allele of a gene is expressed, which is dominant. Thus, dominant alleles express in both homozygous as well as in the heterozygous condition, whereas the recessive alleles only express in the homozygous condition. That means मेंडल साहब ने जो कहा था कि जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी ट्रेट्स है, ट्रेट हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए प्लांट इज अ ट्रेट, शेप ऑफ ए सीड इज अ ट्रेट, कलर ऑफ ए सीड इज अ ट्रेट. मेंडल ने ये कहा था कि दैट एवरी कैरेक्टर, एवरी ट्रेट प्रेजेंट इन अ प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड दैट जीन इज हैविंग टू फॉर्म्स. वो हमने अभी देखा अलील, जिसको हम अलील बोलते हैं, कि हर एक जीन की दो फॉर्म्स होती है जिनको हम अलील्स बोलते हैं. और मेंडल ने ये कहा था जो डोमिनेंट अलील होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा. दैट मीन्स अगर आपके पास जीनोटाइप ये है, अगर आपके प्लांट के पास जीनोटाइप T एंड T है, कैपिटल T एंड कैपिटल T, द प्लांट फिनोटाइपिकली द प्लांट विल बी टॉल, क्योंकि डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, चाहे ये होमोजाइगस कंडीशन में हो. अब अगर ये कंडीशन है डोमिनेंट एक और रिसेसिव एक, तब भी प्लांट की हाइट क्या होगी? टॉल होगी. और रिसेसिव फिनोटाइप दैट मीन्स डिवार्फ प्लांट तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एलील्स जीन के किस फॉर्म में होंगे? रिसेसिव कंडीशन में होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे. तो स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, दैट द डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेसेस इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, whereas the recessive allele only expresses in the homozygous condition. That is the statement जो हमने यहाँ पे लिखा है, that character is controlled by a gene having two alternate forms. In hybrid condition, only one allele of a gene is expressed, which is dominant. Hybrid condition में सिर्फ dominant वाला express करेगा और recessive वाला express नहीं करेगा. Thus, dominant alleles express in both homozygous as well as in heterozygous condition, whereas the recessive alleles express only in the homozygous condition. Simple definition. Let's move forward to the law of segregation. That is very important. Law of segregation, और यही से जो न्यूमेरिकल्स है CSIR के, वो यहाँ से आते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही नहीं पूछता है. Nobody is going to ask you what is the statement of law of dominance. The question will directly come from the law of segregation. Law of segregation को हम law of purity of gametes भी बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है. यहाँ पे इन डिटेल अब हम फाइनल करेंगे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो स्टेटमेंट है, दैट इज ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन, वो आपने देखा, they segregate or they separate, so only one allele of a gene goes to a gamete. गैमीट में सिर्फ एक ही अलील जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं that gametes are always pure. इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की अगर आप बात करो, दैट मीन्स जब होमोजाइगस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं दिखाते, हम यहाँ पे सिर्फ सीधे अल्फाबेट्स दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप ये है, इसके पास है कैपिटल T और इसके पास है स्मॉल t. अब ये इसका क्रोमोसोम है. अब जब गैमेटोजेनेसिस होगी
गैमेटोजेनेसिस के बाद प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस होगी, यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक गैमीट बनेगा जिस पे होगा कैपिटल टी और दूसरा गैमीट बनेगा जिस पे होगा स्मॉल टी। दीज आर नाउ गैमीट्स। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल था दैट वाज इन होमोजाइगस कंडीशन, बट गैमीट्स कभी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, दे मे बी इधर they may have either dominant allele or they may have recessive allele. They will not have both the alleles. They will not have capital T and small t. Exceptions are there in case of the meiotic abrogations, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे जब मियाटिक डिसरेगुलेशन होता है तो जिसको हम बोलते हैं मियाटिक कॉन्सिक्वेंस, जो हमें आगे पढ़ना है म्यूटेशन में, वहाँ पे हम डिस्कस करें। इन नॉर्मल केसेस हर एक गैमीट के पास एक एलील रहता है जीन का। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम लिखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट वी टेक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें एक्सप्लेन करना है क्या वाकई में सेग्रीगेशन होता है या नहीं होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इंडिविजुअल है, आपके पास एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसका आपने क्रॉस किया स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। दीज आर दी प्लांट्स, पैरेंटल प्लांट्स। अब यहाँ से गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस के बाद यहाँ से बनेगा कैपिटल टी और यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, एक ही तरह का गैमीट बनेगा। अब गैमीट्स फ्यूजन होगा, जो F1 आपके पास बन के आएगा दैट विल हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इज इट क्लियर? और इसका जीनोटाइप फिनोटिपिकली ये कैसा होगा? टाल होगा, ये हम जानते हैं। अब हमें देखना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है या नहीं होता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम अलग अलग केसेस लेंगे। हम पहला केस लेंगे दैट देयर विल बी नो क्रॉस ओवर, देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। इफ देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, व्हाट विल हैपन? केस नंबर फर्स्ट, नो सेग्रीगेशन, नो segregation of गैमीट्स। अब सेग्रीगेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? पहले ये करने से पहले एक बार हम यहाँ पे पहले थोड़ा ये करते थे। अब जब ये F1 आपके पास आएगा, सो लेट्स ड्रा इट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो ये जो F1 है इसका हम सेल्फिंग करते हैं। सो F1 आपके पास ये है T एंड T, लेट वी डू इट सेल्फिंग विथ T एंड T। ठीक है, सेल्फिंग करोगे तो यहां से कितने तरह के सेग्रीगेशन अगर होगा? नॉर्मल सेग्रीगेशन, गैमेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल सेग्रीगेशन। गैमेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल segregation। गैमेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल सेग्रीगेशन। नॉर्मल सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा? यहां पे यहां से कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? यहां से बनेगा कैपिटल टी और यहां से एक बनेगा स्मॉल टी। यहां से भी यही, ये दो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नॉर्मल सेग्रीगेशन हो गया, एलील सेग्रीगेट हो गए, गैमेटोजेनेसिस हो गई। अब जब F2 बनेगा, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, यू विल हैव T एंड T। ये T इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, इट विल बी
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इसके साथ। जेनेटिक्स का रूल है हमेशा डोमिनेंट पहले लिखा जाता है और रिसेसिव बाद में लिखा जाता है, तो हम यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिख सकते, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना है। और ये इसके साथ भी फ्यूजन कर सकता है, इट विल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो द फ्यूजन इज रैंडम, गैमेटिक फ्यूजन इज रैंडम, फ्यूजन इज रैंडम, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, तब जाके ये चीजें नहीं होंगी। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज सेग्रीगेशन, अनदर इज gametic fusion, random collision, random fusion of gametes. So what will be the phenotype of this plant? It will be tall. What will the phenotype of this? Will be tall. This is also tall. जो law of dominance है, that homozygous allele जो है, dominant allele जो है, that expresses in homozygous as well as in heterozygous condition, whereas the recessive allele expresses only in the homozygous condition. That means जो यहाँ पे जो genotype होगा, that will be dwarf. Phenotypic ratio की अगर हम बात करेंगे, phenotypic ratio, how many of these plants are tall? 1, 2 and 3, it will be 3 is to how many are dwarf? 1. So phenotypic ratio will be 3 is to 1. Okay. Genotypic ratio क्या होगा? Genotypic ratio will be what? Genotype क्या होगा? एक तो डोमिनेंट ही है, इट विल बी 1 is to, ये दो इनका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस, इट विल बी 2 is to, इसका होमोजाइगस बट रिसेसिव, इट विल बी 1। जीनोटिपिक रेशियो बन के आएगा 1 is to 2 is to 1। 1 कैसा? 1 is homozygous dominant, 2 are heterozygous dominant and 1 is homozygous recessive. This will be the genotypic ratio. ये phenotypic ratio और ये जो genotypic ratio है 1:2:1 या 3:1 जो भी ratio यहाँ पे आया है, it is only possible if two conditions will be fulfilled. Condition number first is that there should be segregation at the time of gametogenesis. Both the alleles should segregate so that you will get at the end 3:1 or 1:2 ratio. Okay. And second criteria for 3:1 or 2:1:2:1 is that the gametic fusion should be random. It should not be selective. अगर हम selective हम बोलेंगे सिर्फ ये कैपिटल टी के साथ ही फ्यूज करेगा, ये स्मॉल टी के साथ फ्यूज नहीं करेगा, then you will not get this ratio. You will not get the 3:1 or 1:2:1 ratio. Okay. So these are the criteria for 3:1 ratio. That's very important. Let me take some conditions. For example, condition number first ले लेते हैं. Condition number first हम लेंगे. Condition number first is no segregation of gametes. Let us see what will happen. What will be the effect over the 3:1 ratio or 1:2:1 ratio. No segregation. No segregation of gametes. अब सेग्रीगेशन नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे आपने हाइब्रिड को क्रॉस किया था इसके साथ. अब नो सेग्रीगेशन मतलब यहाँ से जो गैमीट आएगा उसके पास भी ये होगा, यहाँ से जो गैमीट आएगा उसके पास भी ये होगा. जब फ्यूजन होगा यू विल हैव टी 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 एंड टी. इट विल बी टॉल. Although it is abnormal genotype, but phenotypically the plant will be tall. So, are you expecting any 3:1 ratio here? No, not at all. Next, दूसरी कंडीशन है हमारे पास. कंडीशन छोड़ो, अब हम इस F1 का जिसका नॉर्मल सेग्रीगेशन होता है इसका हम टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं एक बार. टेस्ट क्रॉस आपको पता ही है, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? टेस्ट क्रॉस
टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस करते हैं F1 इंटू रिसेसिव जीनोटाइप। F1 हमारे पास जो है दैट इज कैपिटल T एंड दिस, इसका हम करेंगे स्मॉल t के साथ क्रॉस, दैट विल बी द टेस्ट क्रॉस। गैमेटोजेनेसिस होगी तो यहाँ से दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t, और यहाँ से एक ही तरह का गैमेट बनेगा दैट इज स्मॉल t। अब जब फ्यूजन होगा इट विल बी कैपिटल T, स्मॉल t, इट विल बी स्मॉल t एंड स्मॉल t। रेशियो क्या बनेगा 1:1। फिनोटिपिक रेशियो ये होगा टॉल और ये होगा डिवाफ। दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:1, TT एंड T एंड T। So this is the condition कि अगर टेस्ट दिस इज द टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 in case of normal gametogenesis and normal and random fusion of gametes। अब हम अगर इसमें कंडीशन नंबर 2 लेंगे, हम यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन हम जो है क्रॉसओवर सेग्रीगेशन नहीं करवाते। अगर हम सेग्रीगेशन नहीं करवाते हैं, नो सेग्रीगेशन, नो सेग्रीगेशन एंड क्रॉसओवर, नो सेग्रीगेशन एंड टेस्ट क्रॉस। सेग्रीगेशन नहीं करेंगे लेकिन क्या करेंगे, ये करेंगे हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t। चाहे यहाँ से करवाओ एबनॉर्मल दिस सेग्रीगेशन या वहाँ से करवाओ या दोनों जगह से करवाओ, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यही आएगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन, इट विल बी लाइक दिस, it will be like this, so they will fuse, the result product will be this is tall, because still the tall allele is present, so phenotypically it will be tall, so there is no, the ratio changes from 1:1 to 1, the ratio changes from there 3:1, it changes to 1 in case of this selfing, and it changes from 1:1 to 1 in case of test cross. So this thing clearly tells us that the segregation and the random fusion of gametes is essential for the formation or for the ratio 3:1 or 1:2:1 ratio. So these are the criteria. I think you should note these things down, that these are the criteria that are important for the 3:1 or 1:2:1 ratio. Okay, let us proceed. So law of segregation. Okay, now see, there are two things. For example, this is chromosome. Take a chromosome. ये इसके पास ये F1 वाला क्रोमोसोम है, कैपिटल T और स्मॉल t। अब जब S फेज होगा, S फेज में क्या होता है, S फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ DNA। द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये बनेगा कैपिटल T, स्मॉल t एंड स्मॉल t। ओके, रेप्लिकेशन जब हो गई, अब यहाँ से रेप्लिकेशन के बाद सेल जाएगी, अब एस फेज सेल ने क्रॉस किया, अब सेल जाएगी एम फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में। अब अगर there is no segregation, condition number first is that there is no crossover between dominant and recessive allele, no crossover, between कैपिटल T एंड स्मॉल t। क्रॉसओवर नहीं होगा दोनों के बीच, तो क्या होगा, आपको याद होगा एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है।
That is the reason I am always telling you guys that first go to the lecture number first. That is important, and that is the basis to the entire genetics. Until and unless you won't understand the chromosomal basis of inheritance, you are not going to understand a bit from the entire genetics. Okay, so please, if you are new to the channel, if you are new here, so please go to the lecture number first, where I have described in detail the chromosomal basis of inheritance. वहीं से आपको पता चलेगा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड ऑल दिस. अब जब एनाफेज फर्स्ट होगा, एट एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विल सेपरेट. यू विल हैव 2 cells, सेकेंडरी गैमीट्स हम जिनको बोलते हैं. यहाँ पे जो गैमीट बनेगा आपके पास, दैट विल बी कैपिटल T एंड कैपिटल T, और यहाँ पे जो गैमीट बनेगा दैट विल बी स्मॉल t एंड स्मॉल t. आगे जाके एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स विल सेपरेट and you will end up with 4 functional gametes, 1 2 3 and 4, capital T, small t and small t. Clear? अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, इफ क्रॉस ओवर ओकर बिटवीन यही क्रोमोसोम हम ले लेते हैं. सॉरी, दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट. अब कंडीशन नंबर सेकंड जो है, इट इज सेम हियर एस फेज के बाद ये बनेगा यहाँ से. अब देयर इज क्रॉस ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर, क्रॉस ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर, या बिटवीन जीन्स, जीन एंड सेंट्रोमियर, या बिटवीन जीन्स. अब क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर में ये पार्टिसिपेट करेगा. क्रॉसिंग ओवर होगी, इट विल बी लाइक दिस. स्ट्रक्चर विल बी कैपिटल T, स्मॉल t. एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में homologous chromosomes will separate. You will end up with having 2 cells. One cell will have capital T and ये यहाँ से यहाँ it will be small t. It will be capital T and small t. Another cell will have small t, तो एक normal यहाँ से और ये एक यहाँ से capital T. It is capital T here. Capital T. Okay, capital T, capital T. अब एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स विल सेपरेट. नाउ द ब्रेक विल occur here. Break will be right at the middle, at the centromere. So you will have 4 gametes, 2 3 and 4. This will be capital T, this will be capital T, small t, capital T and small t. Okay, small t. Now मैं इतना ये सारा क्यों पढ़ा रहा हूँ? Why I am asking you, why I have put so many things here? The reason is that there was a question in the CSIR. The question was, if there is no crossover between gene and centromere, at what stage the dominant allele segregate or separate from recessive allele? Now see, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, आप यहीं पे देख रहे हो डोमिनेंट अलील अलग, डोमिनेंट जीन अलग जा रहा है और रिसेसिव जीन अलग जा रहा है एट एनाफेज फर्स्ट. लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन द जीन्स, you can see even after crossing the anaphase first, still the dominant allele is with the recessive one. The dominant is with the recessive one.
So that means the dominant will separate or it will segregate from the recessive at anaphase second, क्योंकि anaphase second में हमें पता है वहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट जाती है तो सारे अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. तो जो आंसर इज दैट आपके पास यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली कि उन्होंने बोला है क्रॉस ओवर हुआ है कि उन्होंने बोला है कि क्रॉस ओवर नहीं हुआ है. अगर क्रॉसिंग ओवर होगी dominant and recessive will segregate, they will separate from each other at anaphase first. और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है then they will segregate at anaphase first. और अगर क्रॉस ओवर हो रहा है between the genes then they will segregate at anaphase second, क्योंकि anaphase second में sister chromatids टूट जाते हैं. that is very important. उस टाइम पे जब मैंने स्टूडेंट्स से पूछा तो most of the students were unable to answer because they don't have the actual concept of the meiosis. meiosis आपको जब तक अच्छे से आपको meiosis पता नहीं होगी, you are not able, you won't be able to get a single thing from the entire genetics. So that is important. So is this clear that अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है then the segregation will be at anaphase first, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है then the segregation will be at anaphase second. Okay, so हम कह सकते हैं the law of segregation, please note this thing down. The law of segregation is parallel with anaphase first and anaphase second. If no recombination or crossover occur between gene and centromere, both the alleles segregate at anaphase first. If recombination occurred, then they will segregate at anaphase second. That is जो हमने पहले discuss किया. I don't think there will be any problem now to understand this thing. Now let's move forward and take a question from CSIR. The question was, a monohybrid self-cross is made and 200 progenies are produced. So you have to tell how many of these progenies are pure. How many of these progenies are pure? So कितना हो pure, कितनी progenies होंगी? तो आंसर करने से पहले you should know the ratio. What was the F1 F2 जो रेशियो था F2 सेल्फिंग, आपके पास क्या आया था रेशियो? रेशियो वाज 1 sorry it was 3:1 sorry F2 selfing ratio it was 3:1 phenotypic ratio, phenotype और phenotypic ratio this था, और genotypic ratio क्या था? genotypic ratio was 1:2:1 अगर आपको याद होगा. अब क्वेश्चन में ये बताया है 200 प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड. जब हमने मोनोहाइब्रिड सल्फिंग की हमें 200 प्रोजेनीज वहां पे मिले. ओके, हमें उससे क्या लेना देना. हाउ मेनी ऑफ दीज प्रोजेनीज आर प्योर. अब आपको ये बताना है इसमें से कितनी प्रोजेनीज 200 में प्योर होंगे. अब प्योर आपको अगर याद होगा ये भी प्योर था, इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी, और ये भी प्योर था, इसका जीनोटाइप था स्मॉल टी. ये दो जो थे इनका जीनोटाइप था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो दीज टू आर प्योर. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी कितने प्योर है आउट ऑफ 4. सो इट इज 2 आउट ऑफ 4 इनटू कितनी प्रोजेनीज वहां पे बनी 200. So it will be 100 progenies will be pure. 100 progenies वहां से बनेंगी जो क्या होंगी, जो प्योर होंगी. प्योर अब ये भी है, it's also pure and this is also pure. So the answer will be 100. So it will take you hardly 10 or 20 seconds to answer this CSIR genetics question. If you have a strong concept over the, if you have really understood the genetics in terms of like in quality genetics we can say. क्योंकि यहाँ पे अगर आपने चीज़ें याद रखी है, if you have memorized the things then it's not going to
help you. It will be of no use. Okay, so let's take another question from the CSIR. The question is, in F2 generation, dominant and recessive phenotype progeny segregate in 3:4, in 3/4:1/4 ratio. Randomly a dominant progeny selected for selfing. What is the probability of formation of dominant and recessive both types of progenies? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसको उतारो, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन को आप उतारो और फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आपने जो याद अगर होगा आपको वहां पे मिला था कैपिटल टी, वहां पे मिला था आपको कैपिटल टी स्मॉल टी और वहां पे मिला था स्मॉल टी। ये बोल रहा है इन F2 जनरेशन डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्रोजेनी सेग्रीगेट 3/4:1/4, 3/4:1/4 वो हमें पता है, डोमिनेंट यहाँ पे 3/4 और रिसेसिव वहां पे 1/4 वो हमें पता ही है। रैंडमली अ डोमिनेंट प्रोजेनी सिलेक्टेड फॉर सेल्फिंग, रैंडमली उन्होंने डोमिनेंट प्रोजेनी सिलेक्ट की है सेल्फिंग में। दैट मीन्स उन्होंने जो प्रोजेनी सिलेक्ट की है वो यहाँ से की है, या तो ये किया है या तो ये किया है, ये मेंशन नहीं है कि कौन सा किया है। उन्होंने कहा डोमिनेंट प्रोजेनी सिलेक्टेड फॉर सेल्फिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ टाइप्स ऑफ प्रोजेनीज? आप हमें बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने सिलेक्ट किया है उससे हमें बोथ डोमिनेंट और रिसेसिव प्रोजेनीज बने। दैट मीन्स यहां से हम कौन सा जीनोटाइप सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें डोमिनेंट भी मिलेगा और रिसेसिव भी मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये ले लेते हैं, इफ यू टेक दिस वन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसको सेल्फिंग के लिए लोगे विथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, you will end up with the individuals with capital T and capital T. All will be tall, all will be dominant, all will be dominant. That means ये उन्होंने ये सिलेक्ट नहीं किया। अब कौन सा सिलेक्ट किया? ये हो सकता है क्योंकि यहां से तो बन सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ करो, यहां से गैमेट टी बनेगा और यहाँ से बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, सो दिस इज द जीनोटाइप दैट कैन प्रोड्यूस बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव प्रोजेनीज। यही बोल रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्रोजेनी। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको याद होगी इट वाज 1:2:1, सो इट इज 2 out of 3। नाउ इट विल नॉट बी 4 क्योंकि दिस वन हैज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। नाउ इन द लिस्ट देयर आर ओनली these 3, these 2 and these 2, so answer will be 2/3, 2 out of 3, these are in total 3, so it will be 2/3, 2/3 will be the answer. That was the CSIR question. Okay, होप अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या इनबॉक्स भी कर सकते हैं, यू कैन DM एनीथिंग व्हाट एवर यू आर कन्वीनिएंट विथ। सो आप हमें बोल सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं CSIR के हम कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। और एट द एंड अगर आपको हमारी ये चैनल पसंद आ रही है, हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको अगर पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वाकई दे आर वर्दी, सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।